to episode 7 of Stock Pichacha. I hope you are able to hear me. If you can, please confirm so that we can continue. Yes, quite clear and loud. Thank you so much. So, let's just set the format first. As we have seen that, YouTube streaming has been a headache for us, and video haven't been going through live. So we decided this new format where at 4 p.m. we will, discuss things with the participants who have given us their email already, or maybe we'll also put out the link in the public. So in the public only, I mean, there is up to 100 limit. So whoever joins first, they can join. Otherwise, I mean, people will be left out. But those who have put the email in, stock with Charcha Google form, they'll be able to join anyway. Okay, so that is there. And then later, the same video will be uploaded at 9 p.m. to the YouTube so that others can see it later. With that, I'll share my screen and then we'll talk about certain concepts. In between, if you have something to say, you can use the chat box or you can also unmute yourself. But so far, so as this concept goes, I'll prefer if you don't, say anything in between, but after that, you can. All right. So, can you see my screen? Not. So, can you see my screen? All right. So basically, it is a very what should I say, elementary concept. But then in life, everything is elementary, right? But most people have hard time thinking clearly about basic principles, and that is how they bungle up in their decisions, and the consequences are not really beautiful or as they expected. So ये बड़ा कुछ छोटी सी लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक टाइप की बात है थिंकिंग इन परसेंटेजेस सो बेसिकली परसेंटेजेस में सोचते कैसे हैं ये बात है इसकी बात करेंगे आज हम तो अगर आपको कोई बोले कि कोई चीज है जो 1 रुपए की थी अभी 2 रुपए की हो गई राइट कैसा फील होगा भाई 1 रुपए बड़ा है क्या बड़ी बात है 1 रुपए का सामान 2 रुपए का हो गया चिल्लर तब भी था आज भी चिल्लर है ना ऐसा सोचते हैं अभी किसी को बोले 100 रुपए का है कुछ और वो जो है अभी 130 का हो गया ठीक है तो तब कैसा सोचेंगे तब ये सोचेंगे कि भाई ये तो काफी बढ़ गया है ना 100 रुपए का था 130 का हो गया ऑलरेडी महंगा था और महंगा हो गया इसी को अगर कुछ ऐसा सोचे 10,000 का कुछ था और वो 12,000 का भी हो गया तब तो और एकदम सोचेंगे अरे बाप रे 2,000 बढ़ गया ऐसा लेकिन इफ यू थिंक ये जो है सही तरीका नहीं है सोचने का आपको ऐसा सोचना चाहिए कि ये जो 1 to 2 हुआ है ये एक्चुअली क्या है दिस इज डबलिंग राइट तो डबल जब हुआ तो कितना परसेंट हुआ 100% 100% इंक्रीमेंट हुआ राइट अब ये 100 to 130 हुआ ये एब्सोल्यूट नंबर जरूर बहुत बड़ी दिख रही है 30 जो इंक्रीमेंट है इसमें बट वो एक्चुअली परसेंट आपको देखना चाहिए विच इज ओनली 30% राइट so it is not really as huge as you were seeing it in absolute number the next thing is this 10,000 to 12,000 तो अब अगर ये 2,000 अगर आप देखें तो ये कुछ और भी बहुत बड़ा साउंड करता है अरे 10,000 का था 12,000 का हो गया कुछ तो प्रॉब्लम है
So can anybody confirm whether my screen is visible or not? Still breaking, still echoing and breaking. Echoing and breaking. Nobody can see my screen. So you can't see my screen. अरे, I guess I dropped off. I'll just. So I hope you can see my screen. What's going on? This is painful. Okay, all right. Can see your screen. Okay, thank you. So basically what we are saying is कि आपको जो है कभी भी कोई चेंज जज करना है, जब आप चेंज जज करते हैं किसी चीज में, तो आप कभी भी एब्सोल्यूट नंबर में नहीं देखना चाहिए. दैट इज अ रॉन्ग वे टू थिंक. बट लाइफ में हम ऐसे बड़े नहीं हुए हैं परसेंट में सोचने के लिए. जनरली वी आर मोर सेंसिटिव टुवर्ड्स एब्सोल्यूट नंबर्स, है ना. 1 लाख का है, 50,000 का है ना, 5 रुपए का है. तो वो एब्सोल्यूट नंबर हमारे साइकी में बड़ा इम्पोर्टेंटली प्रिंटेड है. तो उसकी वजह से हमको काफी कई बार. कैन यू म्यूट योर सेल्फ? somebody saying something. कोई बात नहीं, यू कैन सी द लाइव लेटर, बट आई anyway continue. uh, so those who are able to see, fine, otherwise a recorded one will come out anyway. So that is there. So if you see this 1 to 2, 100 to 130, 10,000 to 12,000, सच्चाई ये है कि 1 to 2 is much bigger change. 100% change है. 100 to 130 is much smaller, only 30% change. और ये जो 10,000 से 12,000 है, ये सिर्फ 20% का चेंज है. बट प्रॉब्लम ये है, वो 2,000 का दिखता है ना एब्सोल्यूट चेंज यहाँ पे, तो बहुत बड़ा फील होता है. अब इसका उल्टा भी कर सकते हैं कि समथिंग विच वॉज लेट्स से 3 रुपए का था कभी, वो अभी 1 रुपए का हो गया है. ऐसा फील होता है, अरे पहले भी 3 का था, अभी 1 का हो गया, क्या बड़ी बात हो गई, 2 रुपए चले गए नीचे, इट्स ऑल राइट, है ना. और फिर ये 130 to 100 हुआ तो उसमें थोड़ा ज्यादा फील होता है. ठीक है, 130 वाला सामान 100 का हो गया, और 12,000 वाला 10,000 का हो जाए तो और ज्यादा फील होगा. बट सेम आइडिया. वो एक्चुअली जो कोई 3 रुपए का था अभी 1 रुपए का हो गया, इफ यू सी दैट, इसमें 67% ड्रॉप हुआ है. 67%, दैट इज ह्यूज. और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये ड्रॉप जो है स्लाइटली 30% तो थोड़ा कम होगा, ऑलमोस्ट 27-28%, राइट, क्योंकि ये 130 बेस है और वहां से आप 100 जा रहे हो. ठीक है. सिमिलरली अगर आप ये 12,000 से 10,000 वाला देखेंगे तो इसमें जो ड्रॉप है वो 16.67% का है, राइट. तो वो चीज है, तो आपको ऐसा नहीं सोचना है, एकदम गलत तरीका है इफ यू आर थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट नंबर्स. So now the next thing is mathematics of losses. This is very important. I'll show you some calculations. Nothing out of fancy. उसमें सब normal चीजें हैं. बहुत पहले भी बात की जा चुकी है. Same ideas हैं. I hope you are able to see my screen. Okay. So basically mathematics of uh, losses, right? तो एक काम करते हैं, आपकी बेस कैपिटल मान लेते हैं 100 रुपए थी, ठीक है. और ये जो है लेट्स से कि ये कुछ घट रही है, ठीक है, मान लेते हैं वो लेट्स से कि 1% का ड्रॉप है. ओके. देन लेट्स से कि वो 5% का ड्रॉप है. देन लेट्स से कि वो 20% का ड्रॉप है. देन लेट्स से कि 40% का ड्रॉप है. देन 50% का ड्रॉप है. देन लेट्स से कि 75% का ड्रॉप है. देन लेट्स से 80% का ड्रॉप है. देन से कि
90% का ड्रॉप है, ठीक है, दिस इज ड्रॉप। तो अब देखिए ये 100 इज योर ओरिजिनल मनी, ठीक है, 100 रुपये था। अब आपने इसको 1% ड्रॉप करा दिया तो एक्चुअली जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, दैट विल बी 1 माइनस दिस, राइट, एंड देन यू मल्टीप्लाई इट by base capital, okay, so I'll just, ओके, तो देखिए जब 100 था उसको 1% ड्रॉप कराया 99 हो जाएगा, 5% ड्रॉप कराया 95 हो जाएगा, 20% ड्रॉप कराया 80 हो गया, 40% ड्रॉप कराया 60 हो गया, राइट, 50% ड्रॉप कराया तो हाफ हो गया 50, 75% ड्रॉप कराया 25 बचा, ठीक है, 80% ड्रॉप कराया 20 बचा, 90% ड्रॉप कराया 10 बचा, ठीक है, सो फार सो गुड, इसमें कुछ बड़ा कोई भी चीज फैंसी नहीं है। नाउ व्हाट इज फैंसी इज दिस, अब आपको इसको नो प्रॉफिट लॉस पोजीशन पे ले जाना है, ओके, अब नो प्रॉफिट लॉस पे ले जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस 99 को 100 करना पड़ेगा, है ना, तो आपको ये कैलकुलेट करना है कि उसकी जो परसेंट है वो कितनी होगी, ओके, so what I'm doing is I'm just putting out the formula for that, if I say this, right, तो इसको जो है परसेंट में कन्वर्ट कर देते हैं, ओके, तो ये जो 1% का ड्रॉप था, तो अगर आप ये देखेंगे तो इसको थोड़ा सा कर देते हैं तो दिखने लगेगा, ठीक है, तो जब आपका कैपिटल 1% ड्रॉप होता है, 1% आपको लॉस होता है, तो आपको 1% नहीं चाहिए, ये थिंकिंग भी बहुत प्रिवलेंट है और बहुत ही गलत है, बड़ा बेसिक है लेकिन समझना जरूरी है। 1% का ड्रॉप हुआ तो आपको उसको मेक इवन करने के लिए, नो प्रॉफिट नो लॉस पे ले जाने के लिए, 100 को 100 बनाने के लिए 1.01% चाहिए, वो 01% बड़ा छोटा है, दैट्स ऑल राइट, बट चाहिए 1.01%, इट इज नॉट गोइंग टू बी द ड्रॉप दैट यू हैव सीन, 1% बस नहीं चाहिए होगा 1% के डैमेज को भरने के लिए, ठीक है, द सेम इफ यू सी हियर, सो इफ यू सी 5% का ड्रॉप हुआ है, राइट, 95 पे पहुंच गया, तो अब 95 से वापस 100 जाना है, दिस इज आवर ओरिजिनल नंबर, तो वहां जाने के लिए 5% से काम नहीं चलेगा, आपको कितना डालना पड़ेगा, 5.26%, ओके, सो नाउ थिंग्स विल, सो ऑलवेज रिमेंबर दिस, कभी भी आप किसी के साथ आर्ग्यू करते हैं, डिबेट करते हैं, डिस्कस करते हैं, ऑलवेज स्ट्रेस द लॉजिक टू द एक्सट्रीम्स, जो लॉजिक सामने वाला आर्ग्यू कर रहा है उसको आप एक्सट्रीम्स में स्ट्रेच करिए, तो उससे आपको पता चलेगा कि वो कितना एब्सर्ड है या कितना लॉजिक है उसमें एक्चुअली, कि वो विद स्टैंड कर सकता है स्ट्रेच करने के बाद भी, तो लॉजिक जैसे ही आप स्ट्रेच करते हैं तो उससे आपको पता चलता है सही सोचने का तरीका, क्योंकि जो कंट्रास्ट होता है वो बहुत बढ़ जाता है, जो ब्लैक एंड व्हाइट है ना, ब्लैक बहुत ब्लैक हो जाएगा, व्हाइट बहुत व्हाइट हो जाएगा, तो आपको क्लियरली दिखने लगेगा, बट जब आप नॉर्मल बात कर रहे होते हैं तो वो बड़ा ग्रे टाइप का लगता है, ऐसा फील होता है इसमें कुछ आंसर नहीं है, बट ऐसा होता नहीं है, इफ यू स्ट्रेच इट यू विल एबल टू सी कि एक्चुअली इसमें क्या सही है, विच इज अ बेटर पोजिशन टू टेक। सिमिलरली इफ यू सी, जब 20% का ड्रॉप हुआ तो 80 हो गया, नाउ दिस 80 इज आवर बेस, अब 80 को अगर वापस 100 करना है तो यू हैव टू इंक्रीज इट बाई 25%, आई होप दिस इजंट सम बिग थिंग। अब ये 40% ड्रॉप हुआ तो 66.67% चाहिए, नाउ हियर बिकम्स द मैजिक, अब ये बहुत क्लियर होने लगेगा, सी दिस लाइन, अब ये रो हमें क्या बताती है, 100 रुपए थे अपने पास, 50% का लॉस हो गया, तो हमारे पास जो बच्चे नया पैसा वो है 50, अब इस 50 को हमें वापस 100 करना है, कॉमन सेंस है, क्या बोलती है, 50 से 100 जा रहे हो तो क्या है, डबल है ना, तो आपको कितना चाहिए 100%, सो इफ यू कट योर कैपिटल इन हाफ फॉर सम रीजन, जो भी हो गया, लॉस हो गया, क्या कुछ भी, रिस्क नहीं मैनेज किया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डबल करना पड़ेगा अपना पैसा, राइट, तो फिर नाउ दिस विल बिकम इवन मोर क्लियर इफ यू सी दिस, अगर आपकी कैपिटल 100 थी, अब 25 बची, लॉस हो गए, अब समवन इज अनम्यूटेड, आई डोंट नो हु इज, एनीवे आई जस्ट कंटिन्यू, प्लीज म्यूट योर सेल्फ सो इट विल बी लिटिल क्लियरर, एनीवे, सो अगर 75% ड्रॉप हो गया तो आपको उसको 4x करना पड़ेगा, इमेजिन दैट, 100 रुपए थे, 25 पे पहुंच गए, तो अब इसको वापस 100 ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 गुना, राइट, ये 4 गुना करना पड़ेगा आपको, तो ये दिमाग से निकाल दीजिए, है ना, कि जो ड्रॉप होता है उतना ही आपको चाहिए टू मेक इट इवन, नो,
इन लाइफ ऑल्सो इफ यू सी, इफ यू हैव डैमेज्ड रिलेशनशिप विद समबडी, है ना, कुछ हो गया प्रॉब्लम, तो अगर उसको वापस सही करना है तो you will have to make it, for you it will be more uphill task. तो पहले जो let's say कि 100 यूनिट ऑफ गुडनेस जो काम करती थी, अभी वो 100 यूनिट नहीं काम करेगी क्योंकि थिंग्स हैव बिकम वर्स। तो उसमें आपको हो सकता है 200 यूनिट चाहिए होगी, है ना, वो एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं कर सकते, वो इमोशनल मैटर है, बट यू गेट द आइडिया, राइट? तो किसी के साथ आपके नॉर्मल रिलेशन है, उसके लिए आप अगर थोड़ा सा भी अच्छा करते हैं, इट विल बी मच बेटर, दैट पर्सन विल परसीव, है ना, कि बड़ा अच्छा है। लेकिन लेट्स से कि किसी के साथ कुछ आपका रिलेशन बड़ा अच्छा नहीं है, देन इवन इफ यू डू मच बेटर स्टिल यू विल बी काउंटेड एज कि नहीं नहीं इसने कुछ कांड कर रखा है, कुछ सोचा होगा उठ पटांगा ना, या सीधा सीधा तो नहीं कर रहा होगा कुछ अच्छा मेरे लिए, तो वैसी सोच। सेम गोज हियर, है ना, ये मैथमेटिक्स है बट ये है। तो अगर कुछ 80% ड्रॉप हुआ तो इमेजिन दैट यू हैव टू डू इट 5x, एंड दिस इज जस्ट इट टेक्स होम द लॉजिक। यू हैड 100, 90% का ड्रॉप हुआ, 10 बचे, तो आप कितना करना पड़ेगा उसको? 10x। यहाँ आपको 10x करना पड़ेगा, यहाँ आपको 5x करना पड़ेगा, और यहाँ आपको 4x करना पड़ेगा, और यहाँ आपको 2x करना पड़ेगा। ऑलराइट, इसके ऊपर x है बट वो बड़े स्मॉलर है, एनीवे सो लीव इट। अब यहाँ पे एक चीज और समझ में आ गई कि जब ये x में बात करते हैं ना हम लोग मल्टीपल्स में, तो जब उसको परसेंट में ले जाते हैं तो वो, है ना, एक पूरा यूनिट कम होता है। तो व्हेन वी से 2x इट इज एक्चुअली 100% ऑफ इंक्रीमेंट, राइट? जब हम बोलते हैं 4x तो इट इज 300% ऑफ इंक्रीमेंट। व्हेन वी से कि 5x देन वी से कि एक्चुअली ये है 400% ऑफ रिटर्न। सेम गोज फॉर दिस 10x। तो 10 गुना हुआ है कोई चीज, इसका मतलब क्या है कि उसमें प्रॉफिट कितना है? 9x, है ना? तो प्रॉफिट जो 9x है वही तो रिटर्न है, तो वो क्या हुआ? 900%, ठीक है। ये बड़ा, ये भी एक छोटी बात है जो बहुत लोग मिस कर देते हैं, देन दे आर्ग्यू। अब आपको ये सोचना है कि क्या फिर ये कभी निगेटिव हो सकता है जो एक्स वाला कंपोनेंट है? नहीं, कभी नहीं हो सकता, राइट? क्योंकि नेगेटिव तो तब होगा जब वो जीरो के नीचे चला जाए। जीरो के नीचे तो कोई चीज नहीं जा सकती ना। आपने 100 रुपए लगाए थे, अब वो -10 नहीं हो सकते कभी भी। 100 डाले थे तो 100 जीरो हो जाएगा, वर्स्ट केस, ठीक है। तो वो चीज है। तो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि जब आप इतना लॉस करते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंगली आपको ये जनरेट करना पड़ता है टू मेक इट इवन। तो ये बड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना कि आप ज्यादा लूज ना करें, वरना उसको बनाना वापस बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। Anyway, so now next thing is losses compound but at a slower pace due to decreasing base capital। तो इसका मतलब क्या है? ठीक है, इसका भी मतलब समझ लेते हैं। जैसे कि 100 था, स्टार्ट किया हमने, है ना, और उसमें 50% का कट लग गया, ठीक है। तो अब बचा कितना अपने पास? 50 बचा, राइट? अब ये 50 बचा, इसमें मतलब कितना हमने कट लगाया इसमें 50% का, ठीक है। ये कैपिटल है एंड दिस इज ड्रॉप अगेन, ठीक है। लेट्स से कि हम बोल रहे हैं कि फिर से 50% का कट लगा दिया, तो अब ये 50% का जो कट लगा रहा है वो 50 पे लगा रहा है, राइट? तो ये कितना बचेगा? 25 हो गया, ठीक है। अब लेकिन अगर आप ये 100 के हिसाब से देखें, क्योंकि 100 आपकी बेस कैपिटल क्या थी? बेस कैपिटल ये है 100। तो इस 100 के हिसाब से अगर आप सोचें तो इसके लिए परसेंट कितना होगा? 50 डिवाइडेड बाय 100 विच इज 50%, राइट? अब अगर फिर से ये करें तो इसकी जो परसेंट है ओरिजिनल कैपिटल के हिसाब से बहुत कम है। सो यू हैव टू सी दिस, ठीक है। तो ये 100 to 50 हुआ, कट बाई हाफ 50%, 50 अगेन बिकेम हाफ 25, ठीक है। 50% का कट है, बट ये यहाँ से यहाँ तक है हाफ। इसके रेस्पेक्ट में अगर आप ये देखेंगे तो ये सिर्फ 25% का ड्रॉप है। अब लेकिन सही तरीका वो भी नहीं है देखने का कि आप ये बेस कैपिटल से बस देख रहे हैं, एक्चुअली आपको इसी से देखना चाहिए, ठीक है। तो लोग बोलते हैं यार मैंने वो 10 रुपए का खरीदा था पेनी स्टॉक, ठीक है, 10 रुपए का पेनी स्टॉक खरीदा, बाई प्राइस, एंड देन करंट मार्केट प्राइस इट ड्रॉप्ड बिग, बेसिकली 2 रुपए का हो गया। सो कितना गवा दिया हमने? 80%, ठीक है। अब लोग क्या सोचते हैं? लोग कहते हैं यार ये 10 रुपए वाला सामान था, बहुत सस्ता हो गया, 2 रुपए का हो गया, ठीक है। तो एक तो सोच होती है कि भाई अब और कितना ही गिरेगा, है ना, अब इतना गिर गया, अब क्या होगा इसमें? कुछ नहीं होगा। बहुत ही गलत सोच है। इट कुड स्टिल बिकम 1, एंड ये आपने मान लेते हैं 10 खरीदे थे तो आपके पैसे कितने हुए? 100, ठीक है। और ये अब ये 10 ही खरीद रखे थे तो 10 ही है अपने पास शेयर, राइट? यहाँ कितना बचा? 20। 100 रुपए आपने डाले थे, 20 बचे। अब आप कह रहे हैं अब कितना गिरेगा? अरे भाई ये 20 अभी भी हाफ हो सकता है, 10।
तो ये जो ड्रॉप है यहाँ से यहाँ तक का, इफ यू सी दिस, अगर 2 हो गया 10 से, इट इज 80% ड्रॉप। अगर ये 1 हो गया 10 से, तो ये 90% ड्रॉप है। अब सुनने में लगता है कि यार ये जो ड्रॉप है, आई जस्ट राइट इट, सी इट मोर, ये 80% जो ड्रॉप है, ऐसा फील होता है कि ठीक है बहुत बुरा है, बट जब ये 90% बोलते हैं तो ऐसा फील नहीं होता कि कुछ बहुत बड़ा हो गया। ऐसा लगता है कि ठीक है, 80% गंवा दिया था, 90 गंवा दिया तो क्या बड़ी बात हो गई। लेकिन नहीं, वो सोचने का तरीका एकदम गलत है। आप सोचो तो आपकी कैपिटल हाफ हो गई, 20 रुपए जो थे वो 10 रुपए बचे। तो आपको ये सोचना है, दिस इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, आई होप दिस मेक सेंस। इफ देयर इज सम डाउट, वी कैन कम टू इट लेटर। Now the next thing is losses in perspective. है ना, 100 becomes 50 and how more it can fall to 20. This we already discussed this thing, ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया है। anyway, so अल्टीमेटली अब ये हम बात क्यों कर रहे थे, ये हम बात इसलिए कर रहे थे कि जो लॉसेस है ना वो बड़ा कंपाउंड करते हैं। अब कुछ लोग ये भी करते हैं, दे डोंट इवन स्टॉप एट दिस कि अभी 80% गिर गया, आप कितना ही गिरेगा, दे इवन एंड अप एडिंग कैपिटल हेयर। अब ये सोचते हैं यार यहाँ मुझे 10 शेयर मिले थे, ठीक है, 100 रुपए में, अभी तो ये 20 रुपए में 10 मिल जाएंगे मुझे, तो ऐसा करता हूँ 50 रुपए डाल देता हूँ, ठीक है, तो मुझे कितने शेयर मिल जाएंगे, 25, ठीक है, तो 25 शेयर्स मिल जाएंगे। अरे नहीं भाई, आप एक तो ऑलरेडी गलत डिसीजन आपने ले लिया है, दिस इज द प्रूफ। 80% कोई चीज ड्रॉप हो गई आपके खरीदने के बाद, दिस इज योर प्रॉब्लम, ये आपका एकदम डिसीजन गलत था, दिस इज द एविडेंस फॉर इट। अब आप उसको और डबल डाउन करना चाहते हैं कि और बढ़ा दें सेम चीज, ये तो मतलब एक बेवकूफ़ी के बाद महा बेवकूफ़ी टाइप की सिचुएशन। यू शुडंट डू इट, बट प्रॉब्लम है कि मोस्ट पीपल डू इट इवन इफ दे डोंट एक्नॉलेज इट। That is why 99% people lose money in the market, not because of some conspiracy going on against the so-called quote unquote retail, no, nothing like that। वो उनकी खुद की बेवकूफ़ी है जिसकी वजह से पैसे कमाते हैं, ठीक है। वो जो खराब चीज़ चलती है उस पर और ज़्यादा पैसे डाल देते हैं, जो अच्छा चलता है उसको जल्दी से ख़त्म करके आ जाते हैं। ऐसे में नहीं चलेगा, ठीक है। So if you have any question, feel free so that we can move towards the stocks that we are supposed to discuss today। I'll stop sharing the ये मेरा एक हेलो yeah। सो मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जब आप किसी शेयर प्राइस की रेंज देते हो कि यू कैन बाई इन दिस रेंज एंड यू कैन वेट फॉर द स्टॉप लॉस, अगर वो शेयर उस रेंज से नीचे चला जाए अभी स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ, तो क्या उस कंडीशन में हम बाई कर सकते हैं कर सकते हैं। या वी शुड वेट फॉर द स्टॉप Yeah, so लॉस? I'll tell you what is the way to think about it. So again, the answer is same कि भाई वो it depends कि आप कैसे हैं, but आप कैसे हैं वो कैसे रिलेट करेंगे ये देखना, ठीक है। तो मैंने कोई एक स्टॉक बोला, आई सेड कि ये अभी 110 पे चल रहा है एंड यू आर सपोज टू बाय इट एट लेट्स से कि 95 to 100, ठीक है। 110 अभी करंट मार्केट प्राइस है, बट आई एम एक्सपेक्टिंग अ ड्रॉप, सो आई सेड कि भाई 95 से 100 के बीच में आप खरीद लेना इसको। देन आई सेड कि स्टॉप लॉस इसका है कुछ 88, ओके। So if you see, I'll share my screen so that caption I have been muted. It's going your entire screen. Just 1 minute. All right. ठीक है। सो एक स्टॉक है जिसका करंट मार्केट प्राइस 110 है, उसकी जो लोअर रेंज 95 है, अपर रेंज 100 है, स्टॉप लॉस लेट्स से 88 है, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें मेन आइडिया ये कि ये 100 से अगर आप देखेंगे, 100 रुपए मैंने हाईएस्ट रेंज बोली ना, पीक, इसको थोड़ा मैं ऐसा कर देता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से देखें व्हाट आई एम। दिस इज करंट मार्केट प्राइस, ओके, दिस इज लोअर रेंज, दिस इज अपर रेंज, दिस इज स्टॉप लॉस, ऑलराइट। तो अगर ये स्टॉप लॉस अगर आप देखें तो बेसिकली ये बोल ये रहा है कि अगर आप अपर रेंज पे भी खरीदते हैं 100 पे भी, तो आपका स्टॉप लॉस 12% है, ओके। 12% स्टॉप लॉस इज व्हेन यू बाई एट अपर रेंज, ठीक है। तो अब ऐसे स्टॉक में तो ठीक है, आपने ले लिया कोई बात नहीं, और वो ड्रॉप कर गया, लेट्स से कि 95 के नीचे चला गया। जनरली इसका मतलब ये होता है कि 95 के नीचे उसको नहीं जाना चाहिए था, मतलब मैंने रेंज दिया, उसका मतलब ये कि आई एक्सपेक्टेड कि मोस्ट प्रॉब्ली जो लोअर रेंज है वो होल्ड करेगा। तो जनरली यू कैन टेक इट एज अ साइन ऑफ वीकनेस जनरली, बट इट वोंट बी ऑलवेज ट्रू। तो आपको करना क्या है, आई विल शो यू अनदर कंसेप्ट। तो बहुत कंसेप्ट ना हो जाए, बस ऐसा ना हो जाए। anyway, बहुत टाइम है अभी, 25 मिनट्स। सो लेट्स से कि प्राइस एक्शन आपने जज किया कि स्टॉक का, उसको क्वांटिफाई कर दिया, उसकी वैल्यू है आपकी x, और फिर आपने स्टॉक की स्टोरी डेवलप की, उसकी वैल्यू है y।
सो हाउ डू आई डिसाइड कि ये मुझे स्टॉक बताना है या नहीं? ये सब मेंटली होता है, ठीक है, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं बना सकते आप, क्योंकि ये नंबर क्वांटिफाइबल नहीं है, जबकि मैं बोल रहा हूँ ऐसा। तो आपको x इंटू वाई कैलकुलेट करना है, ओके। और ये आपको देखना है कि x इंटू वाई, ये जो है इसकी वैल्यू लेट्स से कि k आ रही, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि प्राइस एक्शन बहुत ग्रेट है, एक्स इज सो ह्यूज, तो आप अगर ऐसी सिचुएशन अगर आप देखेंगे तो उसमें वाई अगर कम भी चलेगा तो मे बी यू विल गेट टू के। इसका थोड़ा एग्जांपल लेते हैं, इज नॉट, let's say basically if you see x, okay, dot y, this is equals to k. All right, k is constant, you can take it as 10. For example, we can make it, let's say not 10, let's say 4, okay. सो अब मैं बोल ये रहा हूँ कि जब जब मेरा कॉन्फिडेंस जो है प्राइस एक्शन और स्टोरी का जो दोनों का मल्टीपल है वो 4 से ऊपर होगा तो आई विल बाय इट, ठीक है। लेट्स सी कैसे डिसाइड करते हैं। तो अब इसमें x की जो वैल्यू है इट कुड बी 2, बट इफ इट इज 2 द y बेटर बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2। अब ये मैं इनइक्वालिटी पढ़ाने लगा मैथमेटिक्स की, बट ऑल राइट, डोंट वरी अबाउट इट। तो अगर x मेरा 2 है विच इज प्राइस एक्शन, ठीक है, मतलब डिसेंट प्राइस एक्शन है, तो स्टोरी मुझे डिसेंट या मोर देन डिसेंट चाहिए, ठीक है, तभी तो उसका मल्टीपल 4 से ज्यादा होगा और आई विल बी एबल टू बाय इट, ठीक है। बट लेट्स से कि ये 1 हो जाए और लेट्स से कि प्राइस एक्शन बहुत खराब है, अब उसके लिए मैं जो एग्जांपल मुझे लेना पड़ेगा वो मैं बताना नहीं चाहता अभी, बट एनीवे लेट्स से कि ये 0.5 है। तो अगर ये 0.5 है तो अगर आपको ये 4 चाहिए तो ये नंबर कितनी होनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 8, राइट। तो मतलब इफ यू गॉट अ बैड प्राइस एक्शन बट स्टिल यू आर इवेलुएटिंग इट टू बाय, तो उसकी जो स्टोरी है इट शुड बी नथिंग सॉर्ट ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बहुत ही अच्छी स्टोरी चाहिए। इसका उल्टा भी पॉसिबल है। सो मे बी यू फाइंड अ स्टॉक, ये जो भाई अपना ये स्टोरी है, राइट, तो मे बी यू फाइंड अ स्टॉक जिसकी जो स्टोरी है दैट इज नॉट रियली ग्रेट। उसकी स्टोरी क्या है कि पॉइंट लेट्स से कि 25 है, ठीक है, बहुत ही बेकार स्टोरी है, मतलब कुछ है ही नहीं बेसिकली, यू डोंट इवन वांट टू लुक एट इट, ठीक है। बट फिर भी अगर उसको खरीदना है तो कब ऐसा हो सकता है, जब उसका प्राइस एक्शन बहुत ही ग्रेट हो, मतलब इट शुड बी व्हाट, 4 गुना करना पड़ेगा, राइट, तो इट शुड बी 32, राइट, दिस नंबर शुड बी 32। तो आपको ये देखना है, ठीक है। तो ये कुछ है नहीं, ऐसा कोई फिक्स तरीका नहीं है, यू हैव टू थिंक बोथ इन टर्म्स ऑफ प्राइस एक्शन एंड स्टोरी। सो इट इज नॉट अबाउट दीज नंबर्स कि भाई 110 करंट मार्केट प्राइस है, ये रेंज बता दिए, स्टॉप लॉस है, तो और उसके नीचे चला गया 95 के तो यू विल डिसाइड, नहीं। लेट्स से कि मैं एक स्टॉक बता रहा हूँ जिसमें प्राइस एक्शन पे ज़्यादा भरोसा है, ठीक है, तो दैट सिचुएशन इज अंडर, नो सॉरी, प्राइस एक्शन पे जिसमें भरोसा है तो वो ये वाली स्टोरी, ठीक है, ये वाली, इसमें प्राइस एक्शन 32 है, स्टोरी लेकिन बहुत ही वाहियात है, एंड दैट इज ओनली 25, ओके। तो अगर ऐसा है तो इस सिचुएशन में अगर ड्रॉप आ जाए, लोअर रेंज के भी नीचे चला जाए स्टॉक, ठीक है, तो इसको अवॉइड करना है। क्यों? क्योंकि इसमें जो पूरा हमारा फोकस था वो किस चीज पे था, स्टोरी पे, सॉरी प्राइस एक्शन पे। तो प्राइस एक्शन पे हमारा फोकस था और वही बुरा हो गया है ना, वो लोअर रेंज के भी नीचे चला गया, तो ऐसा स्टॉक को क्या करेंगे, अवॉइड कर देंगे, वी शुडंट बी लुकिंग एट देम। लेकिन लेट्स से कि एक स्टॉक है जिसकी स्टोरी बड़ी ग्रेट, आई डोंट वांट टू टेक द नेम्स, तो बट यू हैव ऑलरेडी सीन द ट्रैकर, यू हैव सीन सम आइडियाज जिनमें एक्चुअली प्राइस एक्शन में कुछ है ही नहीं, है ना। तो उनका प्राइस एक्शन कैसा है, उनका प्राइस एक्शन अगर आप देखेंगे तो ये 0.5 टाइप की सिचुएशन है। तो वैसे में आई एम बेटिंग ऑन देम बिकॉज आई सी ग्रेट स्टोरी देयर। तो अगर ऐसा स्टॉक ड्रॉप भी करता है ना, ऑलरेडी उसका बहुत ही बुरा प्राइस एक्शन था, आई एम नॉट रियली वरीड अबाउट द प्राइस एक्शन देयर एक्सेप्ट फॉर द स्टॉप लॉस। तो जिसकी स्टोरी बड़ी ग्रेट है, आई एम विलिंग टू टेक मोर रिस्क, आई एम विलिंग टू गिव इट मोर स्पेस टू वर्क, ठीक है। तो इसमें कुछ यस और नो का आंसर नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, अब ये डिपेंड करता है कि आपकी साइकी पे भी, कई बार ऐसा होता है कि सम पीपल आर रियली स्ट्रिक्ट अबाउट इट, जो रेंज बताई उसी में कर देंगे, जो स्टॉप लॉस वही हिट कराएंगे, उसके बाद बात खत्म, ठीक है, वो दैट इज गुड आइडिया। कुछ लोग हैं वो ज़्यादा डिस्क्रिशनरी हैं, दे कैन प्ले अराउंड, तो वो भी पॉसिबल है। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, जैसे कि मैंने स्टॉप लॉस बताया 88, राइट, तो अब अगर 88 स्टॉप लॉस है और वो करंट मार्केट प्राइस उसका लेट्स से कुछ 90 हो गया, ठीक है, 90 और 89, तो अब ये बहुत लो रिस्क एंट्री है, राइट, मतलब 1% 2% का है, तो आप यहाँ पे थोड़ा रिस्क ले सकते हैं। तो कई लोग
दे डोंट लुक एट स्टोरी एंड प्राइस एक्शन मच, दे आर लाइक कि भाई ये स्टॉप लॉस बताया है, इसके नीचे वैसे भी एग्जिट करना है, ये बहुत करीब है, तो थोड़ा रिस्क लेके देखते हैं, शायद कुछ चली जाए। तो दे आर ऑल्सो देयर, बट आई एम नॉट रियली फैन ऑफ दिस आइडिया, ठीक है। आई डोंट रियली लाइक दिस बिकॉज दिस इज नॉट बेस्ड ऑन एनी लॉजिक और एक्सप्लेनेशन, दिस इज जस्ट hunches कि अरे बड़ा कम रिस्क है तो ले लेते हैं। नहीं नहीं, दिस इज द वे, सो यू हैव टू थिंक वेदर इट इज अ predominantly this price action stock, or this is predominantly story idea, ठीक है। I hope I was able to make some sense. Sagar? Yes, yes. Okay. Anybody else has anything to say before I move towards the ideas? Okay, nobody has anything to say. So, all right, today's stock Amritanjan. All of you know, I mean, Amritanjan. Uh, if I do that. All right. So, if you see Amritanjan, तो अमृतांजन बड़ा एक हाउस होल्ड नेम है, ऐसा कुछ उसमें प्रॉब्लम नहीं है कि आप लोग जानते नहीं हैं। लेट्स गो टू स्क्रीनर। टाइम है, वी कैन डिस्कस इन डिटेल थोड़ा आइडिया, सो यू विल एबल टू सी कि एक्चुअली जो करते हैं वो करते कैसे हैं थोड़ा सा। अमृतांजन हेल्थ केयर, ठीक है। सबसे पहला आपको काम जो करना चाहिए, इफ़ यू आर डूइंग योर ओन रिसर्च एंड वर्क, तो जो सबसे पहला काम करना चाहिए वो आपको स्क्रीनर पे जाके उसका नाम सर्च करना है, ठीक है। अमृतांजन है, so you see the website is here, you see the BSc link is here। अब BSc पे नहीं जाना है जनरली, वेबसाइट इज सफिशिएंट। you see कि बहुत पुराना ब्रांड है ये, है ना। इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, जो इनके फाउंडर हैं, ही यूज्ड टू बी आल्सो पार्ट ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, ही वाज अ गांधी आई सपोज। एनीवे, सो ये अमृतांजन है, ठीक है। ये इसका पेन बाम आता है फेमसली। बाकी ये कई और प्रोडक्ट हैं इनके, ठीक है। इफ यू सी हियर यू कैन सी कंजेशन मैनेजमेंट, वुमेन्स हाइजीन, अदर प्रोडक्ट्स, बेवरेजेस एंड व्हाट नॉट। पेन मैनेजमेंट में पता नहीं क्या क्या बना रखा है, हेडेक का अलग है, पेन बाम अलग है, स्ट्रॉन्ग पेन बाम अलग है, न्यू महा स्ट्रॉन्ग पेन बाम अलग है, ठीक है। तो इनके पास प्रोडक्ट्स हैं बहुत सारे मोस्टली, लेकिन ये जो कंपनी फेमस है वो सिर्फ एक चीज के लिए, दैट इज बॉम। तो बॉम्ब सेक्टर में इनका जो है काफी अच्छा जो है ना, मार्केट शेयर है और अच्छी पोजीशन है, ठीक है। इतना हो गया। मार्केट कैप आपको जरूर देखना चाहिए कि मार्केट कैप कितना है, वो 2000 करोड़ है। उसके तुरंत बाद आपको जो नेक्स्ट चीज देखनी चाहिए वो देखना है शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो अभी आप यहाँ देखें, प्रोमोटर के पास 50% है, FIS के पास 2% है, DIS के पास जो स्टेक है वो 7.76% है। ये बीच में डिक्रीज हो गई है, बट यहाँ से सडनली फिर से इंक्रीज हो रही है, कुछ तो हो रहा है ना। तो जो पब्लिक के पास जो होल्डिंग है 40.16% है। अब ये नहीं कहना कि ये पब्लिक फ्लोट है, दिस इज इनकरेक्ट वे टू लुक एट व्हाट इज पब्लिक। पब्लिक पब्लिक में राकेश झुनझुनवाला भी तो पब्लिक ही है ना फिर। अब अगर वो खरीदेंगे तो 200 करोड़ खरीद लिया तो 10% स्टेक उनके पास चली जाएगी, तो वो भी इसी लिस्ट में आ जाएंगे। तो क्या उनको पब्लिक बोलना चाहिए? बिल्कुल नहीं, है ना। यू शुड, हिज पोजीशन शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम ट्रेडेबल फ्लोट। तो अगर इसको आप अंदर जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये कोई तो है जो 2.56 है ना, उसने 2.3 है ना, फिर अभी फिर से इंक्रीज करने लगा। तो बेसिकली यू कैन से कि इसने लास्ट 3 साल में करीब 2.3 के ऊपर स्टेक तो होल्ड की है। तो ऐसे इंसान की जो स्टेक है वो रिमूव कर देनी चाहिए पब्लिक फ्लोट से, ओके। सेम गोज फॉर दिस दीपक कन्हैयालाल शाह। सो इफ यू रिमूव दिस, तो यहाँ से करीब क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट 3.7% और एक्स्ट्रा जो है रिमूव हो जाएगा। सो इफ यू सी, इट विल बिकम समथिंग लाइक 37 पॉइंट समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो ये 40% नहीं है, दैट इज द आइडिया। तो आपको ऐसे नहीं सोचना है, ओके। टू थिंग्स ये हो गई, पहला मार्केट कैप, दूसरा ट्रेडेबल फ्लोट। तो आप ये देखेंगे तो अगर 40% भी मान लेते हैं तो इसमें कितना बचा, 800 करोड़ का फ्लोट बचा। 800 करोड़ का फ्लोट इज वेरी स्मॉल फ्लोट। तो ऐसे स्टॉक दे कैन रन ह्यूज, ठीक है। अब ये पीवी लोग देखते हैं, आई डोंट रियली लुक एट देम। ROC वगैरह यू कैन सी कि है ना, बड़ा अच्छा है। डेट टू इक्विटी ये सब आप देख सकते हैं, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। आई वोंट से एनीथिंग। ये एक आइडिया होता है विच आई विल एक्सप्लेन, दिस कंटिंजेंट लायबिलिटी। कंटिंजेंट जैसे इंग्लिश का वर्ड है, वो क्या बोलता है कि इफ ए इक्वल्स टू बी देन सी विल हैपन, है ना। तो वो कंटिंजेंट है टू व्हाट, कि ए
जो है बी के बराबर होना चाहिए तभी सी होगा, है ना। तो कंटिंजेंट लाइबिलिटी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये है कि लीगल लाइबिलिटीज, ठीक है। So they are not direct liabilities, but maybe some subsidiary has some issue going on, है ना, कोई कोर्ट केस है तो उसकी जो लाइबिलिटी है वो है। अब यहाँ तो बहुत कम है, ये 12 करोड़ की लाइबिलिटी है, सो इट इज़ नॉट अ बिग डील। बट जनरली इफ यू सी इंफ्रा कंपनी और जो ऐसी रेगुलेटरी वाली इश्यूज की कंपनी है, या जिसमें कंज्यूमर्स को बड़ा प्रॉब्लम होती है उन प्रोडक्ट से, तो वहाँ पे आप देखेंगे तो कंटिंजेंट लाइबिलिटी इट कुड बी ह्यूज, तो आपको देखना चाहिए। द नेक्स्ट थिंग इज इफ यू सी हियर द चार्ट, है ना, बड़ा अच्छा चार्ट है ना, ऊपर ही जा रहा है। सो दिस इज अ क्लासिक वैल्यू इन्वेस्टिंग स्टॉक चार्ट। बट ऐसे स्टॉक्स को वैल्यू इन्वेस्टर पसंद नहीं करते क्योंकि ये हमेशा रिचली वैल्यूड होते हैं, तो अब ये अलग प्रॉब्लम है। बट एनीवे, लेट्स सी। तो ये आपको दिख रहा होगा कि ये जो है सीजनल बिजनेस है। अब एक और डिफरेंस, ये सीजनल और साइक्लिकल में क्या डिफरेंस है, बहुत लोग जो है सीजनल को चुपचाप से साइक्लिकल से रिप्लेस कर देते, दैट इज एब्सोल्यूट नॉनसेंस। साइक्लिकल बिजनेस ये होता है कि जिसमें आपको ये नहीं पता होता कि वो कब चलेगा कब नहीं चलेगा। तो मतलब वो 2-3 साल तक बड़ा अच्छा करेगा, देन मे बी फॉर नेक्स्ट 2-3-4 ईयर्स इट वॉन्ट डू गुड, है ना। तो जैसे स्टील का बिजनेस है, या सीमेंट का बिजनेस है, या पेपर का बिजनेस है, शुगर बिजनेस, बिफोर दिस एथेनॉल स्टोरी केम। तो वो सब क्या है, वो सब साइक्लिकल बिजनेस है, बिकॉज यू जस्ट डोंट नो विच ईयर विल बी ग्रेट, विच ईयर विल बी ग्रूसम। लेकिन ये सीजनल बिजनेस है। सीजनल इज व्हाट, सीजनल इज की एक सीजन है पर्टिकुलरली, वो आपको पता है कि वहां पे वो अच्छा करेगा नो मैटर व्हाट, और एक सीजन है वहां आपको पता है कि नो मैटर व्हाट वो अच्छा नहीं करेगा। सो दिस इज सीजनल बिजनेस, अंडरस्टैंड द डिफरेंस। तो अगर आप ये देखेंगे तो ये बहुत पहले से आपको एक पैटर्न दिख रहा है, विच इज व्हाट, विच इज दिस, कि भाई जैसे ये जून वाला क्वार्टर आता है, ठीक है, अप्रैल मई जून वाला, तो उसमें जो सेल्स वगैरह हैं वो बड़ी अच्छी नहीं होती हैं, ठीक है, और जो मार्जिन हैं वो भी डिप कर जाते हैं, ठीक है, मे बी निगेटिव प्रॉफिट पोस्ट करती कंपनी। बट जैसे सितंबर आता है इट बिकम्स बेटर, और सितंबर के बाद अगर आप देखें दिसंबर, तो इट बिकम्स इवन मोर बेटर। और फिर ऑलमोस्ट जो पीक आता है दैट कम्स ऑन दिस मार्च, ओके। तो अगर आप यहाँ देखें तो ये आपको सेम चीज दिखा रहा है ना। ये जो जून क्वार्टर है, numbers are not really great, then in September quarter numbers have become much better, and then December even better, है ना। तो ये पैटर्न है, ये सीजनल बिजनेस है, सो डोंट कंपेयर इट विद साइक्लिकल बिजनेसेस। तो ये डिसेंट कंपनी है, पीई कुछ बहुत ठीक है, इसके एवरेज पी से लो ही है ना। इट यूज टू ट्रेड एट 60 पी इन 2017 पीक, अभी तो ये कुछ 30-35 पे ट्रेड कर रहा है, सो नथिंग आउट ऑफ द फैक्ट। एनीवे, सो इफ यू सी दिस, दिस इज नॉट समथिंग न्यू, ये आइडिया काफ़ी पुराना है। ये 495 पे कभी शेयर किया था मैंने पब्लिक में, ठीक है, मे बी आफ्टर दिस मूव, ओके। तो यहाँ पे कहीं शेयर किया, उसके बाद इसने कुछ अच्छा किया, फिर इट हैज़ ईटन ऑल द गेन्स, फिर कुछ अच्छा किया, फिर से वो सारे गेन्स खा गया, बट इवेंचुअली इट डिड वेल, ठीक है, दिस दिस ग्रेट रन। तो उसके बाद से अब ये कर क्या रहे, उसके बाद से अगर आप देखें तो ये ड्रॉप्ड ऑफ बिग, मे बी जो अर्निंग्स आई थी, प्रॉफिट एंड लॉस, वो बहुत अच्छा नहीं आया, तो उसकी वजह से ये गिर गया। अब उसने किया क्या, इसने बेस एक बिल्ड कर दिया, तो बेसिकली दिस गिव्स यू अ लो रिस्क एंट्री पॉइंट, क्योंकि ये है जो आप ये बोल सकते हैं कि यहाँ के नीचे आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं, तो यहाँ पे कहीं स्टॉप लॉस रख लीजिए, ठीक है। लेट्स से कि 659 आपका स्टॉप लॉस है, विच आई विल राइट लेटर। देन इफ यू सी दिस इज द पिवट, दिस वाज द पिवट। पिवट क्या होता है, पिवट होता है वो पॉइंट जहाँ पे कई बार प्राइस जाकर रिजेक्ट हुआ है या जहाँ पे क्लोज हुआ है। तो अगर आप इफ यू सी 712, तो 712 के ऊपर पिवट था, वहाँ के ऊपर इट इज सपोज टू रन, और ये गैप फिल करेगा एंड देन इट मे डू ग्रेट। तो यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस अगर रखना है तो यू शुड टेक दिस। तो अगर आपको रेंज भी देखनी है तो यू कैन टेक द रेंज, 685, ये है ना, मतलब अभी यहाँ से 718 से 685 तक आप खरीद सकते हैं, एंड देन ओके, सो रेंज 685 to 718, and stop loss is 659, all right, okay. So this is one thing that you can do. The second stock idea is Polycab. Polycab again,
सेम ओल्ड स्टोरी. Polycab, what a run it is having. ठीक है. So I'll show you some traits here. Anyway, so you see this. ये एक you see this. अक्टूबर में लास्ट ईयर स्टॉक डिड रियली वेल इन द सेंस कि ये जो मूव्स हैं दे आर मच बिगर एंड देन द वॉल्यूम इज आल्सो ह्यूज. तो यहाँ पे आप देखेंगे तो उसने गैप अप दिया और फिर उसके बाद क्लोज बहुत ही स्ट्रांग किया है ना. तो अब ये एक पैटर्न है. इट शोज यू कि जो परसेप्शन है स्टॉक के लिए वो चेंज हो गया. इसके बाद ही इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, लेट मी जस्ट ओपन दिस एंड आई विल शो यू. तो पॉलीकैब ने इसके बाद वी इनिशिएटेड अ ट्रेड राइट हियर और समवेयर इन अक्टूबर एंड अर्ली नवंबर. दिस इज वेयर वी इनिशिएटेड अ ट्रेड और उसके बाद यू कैन सी व्हाट इट डिड. तो ये क्या है, ये अगर आपका क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस नहीं है तो यू विल गेट हिट ऑन दिस डे. और उसके बाद स्टॉक ने बड़ा अच्छा किया है. ठीक है. तो दीज आर शेक आउट्स, दे आर नॉट, दे आर जस्ट मेंट टू टेक आउट द सिस्टम स्टॉप लॉस. जो लोग सिस्टम में रखते हैं ना कि भाई दिन में कभी भी प्राइस चला जाएगा उसके नीचे तो बेच देंगे, तो अगर आप वैसा करेंगे तो आपको बहुत से ट्रेड आपको छोड़ने पड़ेंगे. ऐसा नहीं कि उसमें अब अगर आपको फ्यूचर ऑप्शन कर रहे हैं वो सब कर रहे हैं ना जो हाई रिस्क नो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग है आपकी, तो उसमें आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा सिस्टम में ना. ये शेक आउट्स विल शेक यू आउट बट कुछ कर नहीं सकते. बट हमारे लिए ऐसा नहीं है बिकॉज वी आर पोजिशनल पर्सन है ना. हमको 40-50%, 100%, 150%, 200%, 300% ऐसा चाहिए ना. 40-50% के नीचे तो चाहिए ही नहीं कुछ. तो ऐसे इंसान के लिए ये जो स्टॉप लॉस है वो मतलब इट कुड बी डेली क्लोजिंग बेसिस. फैक्ट ऑफ द मैटर ये कि एक्चुअली हमारे सारे स्टॉप लॉस डेली क्लोजिंग बेसिस पे ही होते हैं. सो आफ्टर दैट इफ यू सी दिस अगेन मेड बेस और यहाँ पे इसने शेक आउट किया. ठीक है. अब शेक आउट किया तो उसके बाद स्टॉक बिकम्स बेटर. तो यहाँ पे अगेन वी इनिशिएटेड अ ट्रेड और फिर उसके बाद आप यू कैन सी कि इसने क्या किया है सच अ ग्रेट थिंग. एनीवे सो लेट मी जस्ट सी कि ये कब बात की थी. Polycab not here, maybe in October. Can't see. Should be here. Matanzan object is here, but not Polycab. Anyway, so ये Polycab. November's first stock. It is November's first stock. November's first stock. Okay, thank you. I can't see. All right. ऐसा होता है जगह अगर आपने 24 घंटे में 1200 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट की हो और फिर आपने 2 घंटे सोया हो तो ऐसा हो सकता है कि आपको जो एकदम टॉप पे वो ना दिखाई दे. ऑल राइट. तो पॉलीकैब है ये हमने 3 नवंबर को बात की थी. ठीक है. 920 में और तब से इसने बहुत अच्छा किया. ठीक है. सो वी टुक दैट ट्रेड लेटर हियर अगेन वी टुक अनदर ट्रेड है ना. वो मार्च में लिया था तो वहां से भी इसने बहुत अच्छा किया है. द आइडिया इज कि आप ये एक्सप्लेन करना है कि ये क्या चल रहा है क्यों चल रहा है और आगे क्या. ये यू सी दिस पॉलीकैब है ना 1350 में फिर से ट्रेड लिया. इवन फ्रॉम देयर इट इज ऑलमोस्ट अप बाय 50%. ओके. सो द आइडिया इज दिस. ये जो पॉलीकैब है इसकी स्टोरी क्या है. इफ यू सिंह पॉलीकैब 30,000 करोड़ मार्केट कैप है ना. ह्यूज मार्केट कैप यू कैन से बाई आर स्टैंडर्ड्स है ना. बट फ्लोट अगर आप देखेंगे तो कुछ 15% ये पब्लिक के पास है. उसमें से भी अगर आप देखेंगे तो ये 3% ये भाई सब कुछ ज़्यादा बेचते वस्ते हैं नहीं. और ये इनका 1% है ना. तो ये 3-4% आप और घटा दें तो बचा क्या 11% का फ्लोट बचा. राइट. 30,000 करोड़ मार्केट कैप है 11% का फ्लोट है मतलब क्या हुआ 3,000 करोड़. राइट. 3,000 करोड़ इसका फ्लोट है मतलब विच इज़ डिसेंट है ना. इसमें ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है फ्लोट. बट आई वुड प्रेफर कि अगर वो कम हो. अगर आप देखेंगे तो इसका पी बहुत ऊपर चल रहा है हिस्टोरिकली. बट ठीक है. वंस कंपनी इज ग्रोइंग और उसकी स्टोरी बड़ी अच्छी हो जिसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें स्टोरी अच्छी क्या है. इसमें स्टोरी अच्छी है. ये भी कुछ सीजनल टाइप का बिजनेस लग रहा है ना. ऐसा लग रहा है कि दिसंबर क्वार्टर में जो मार्जिन होते हैं दे आर बेटर बट नॉट इनफ डेटा टू से दैट. तो लेट्स लीव दैट. बट एक चीज आप देखेंगे कि इसका जो इंक्रीमेंटल मार्जिन है दैट इज इम्प्रूविंग. ठीक है. रीजन ये कि जो ये करते हैं वो क्या करते हैं
ये देखिए इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स है ना, ये तो है, ये बाद में आया। इनका मेन जो काम है वो वायर्स और केबल्स का है, ठीक है। तो वायर्स, ये देखिए केबल्स और वायर्स, ठीक है। तो अब क्या करें, ये जो वायर्स और केबल्स है ये V2B बिजनेस है, ओके। तो आप बिजनेसेस को सेल करते हैं मोस्टली वायर्स और केबल्स, तो उसमें दोनों लोग पावरफुल होते हैं, तो उसमें जो प्राइस बहुत अच्छी नहीं होती, तो मतलब उसमें जो मार्जिन है बहुत अच्छे नहीं हो सकते। बट अगर आप फैन सेल कर रहे हैं, स्विचेस, स्विच गियर, एलईडी लाइट्स है ना, ये सब तो आप पब्लिक को सेल कर रहे हैं ना, कंज्यूमर को। तो ये क्या है, ये B2C बिजनेस है, राइट, बिजनेस टू कंज्यूमर। तो इसमें आपके मार्जिन अच्छे हो सकते हैं तब जब आपने एक ब्रांड अच्छा खासा बिल्ड कर लिया हो, आपकी एक रेपुटेशन हो मार्केट में, ठीक है। तो पॉलीकैब की जो स्टोरी है दैट इज इवॉल्विंग स्टोरी ऑफ दिस। तो इसमें क्या होगा, ये जो 3,000 करोड़ है ना सेल्स मार्च की, इसमें जो एक जैसे कि ये पहले ये 2,800 करोड़ था, ठीक है। तो इस 2,800 करोड़ में अगर वो कंपोनेंट आप देखेंगे ना FMEG का, फैंस और स्विचेस का, वो कम रहा होगा। बट जब 3,000 करोड़ में जाएंगे तो एज अ परसेंटेज वो उसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी FMEG की। तो उस रिजल्टिंगली ये जो मार्जिन है वो ज़्यादा इंप्रूव हो जाएंगे, ठीक है। गोइंग ahead, this is a improving margin story. This will do hugely, you know, great stuff going ahead also. तो ये डबल हो गया ऐसा नहीं सोचना है ना, that is a wrong way to think. It will continue to do well, you know, for few years. Take it from me, few years, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि you cannot analyze things and figure out the multibaggers, you know, in 1 hour. You can. So I'm giving you one Polycab at 1990. The next stock is basically a discussion more rather than any idea. Our Sugar Energy. Okay. अब यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है, वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट एट हियर, ओके। 325 पे बात की थी, इट डिड वेल, देन इट ऑलमोस्ट ईटन दैट गेन्स है ना, उसके बाद अगेन इट रिप्ड बिग। तो अब ये कर क्या रहा है, अभी देखते हैं। तो उसके पहले यहाँ पे पिक करने का लॉजिक ये था कि भाई ये जो वॉल्यूम थे वो बहुत ह्यूज थे, जब ऊपर आया उसका ये कंसोलिडेशन हुआ बहुत ही लो वॉल्यूम पे, और ये बेस पे था एकदम, ये बेस है, राइट। तो लो रिस्क एंट्री पॉइंट, ऑफ वॉल्यूम ड्राई हो गया है, उसके बाद क्या है कि जरा सी बाइंग आएंगे, इट विल शूट अप। वही हुआ इसके साथ, देन अगेन सेम पैटर्न। But this pattern is not really that great. Reason is twofold. One, volumes are not that smaller. Second, ये जो फॉल हुआ है ना, ये मतलब ये कंसोलिडेशन है, ये बेस में नहीं हुआ, एक्चुअली गिरता हुआ कंसोलिडेशन। दीज आर लिटिल स्केरी। जब ऐसा होता है ना कि रोज स्टॉक खुलता है मार्केट में और 1 2 3% गिर जाता है, तो यू फील बैड, आपको लगता है कि पता नहीं ये कहाँ तक गिरेगा। लेकिन ये वाला कंसोलिडेशन इट डजंट फील दैट बैड। रीजन ये है कि इसमें एक फ्लोर सेट हो गया है 300 के राउंड, ठीक है। So this is a much better entry. This is not as great entry, but still you can enter. You know, maybe here once it has reversed, or maybe here definitely जब ये नया 52 वीक हाई बनाएगा। अभी ये क्या कर रहा है, अभी ये फिर से वही कर रहा है कि अगेन इट, यू नो, लेट मी, ये इसने क्या किया, अभी इसने यहाँ पे इट रिप्ड है ना, ग्रेट वॉल्यूम्स है ना, काफ़ी इतने टाइम से तो ऐसा वॉल्यूम दिखा ही नहीं था। नाउ यू सी इट इज़, यू नो, कंसोलिडेटिंग। अभी 3 4 दिन हुआ है, कुछ बहुत बड़ा नहीं, बट वॉल्यूम हैज़ ऑलरेडी ड्राइड अप। तो मतलब द मोमेंट स्टॉक, यू नो, स्टार्ट्स करेक्टिंग, तो बेचने के लिए कोई तैयार नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि जो जिन्होंने पोजीशन बिल्ड कर रखी लॉन्ग, दे आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दिस एंड दे आर नॉट विलिंग टू सेटल फॉर एनीथिंग लेस। अब लेकिन जब वो रिप करता है तो लोग, कोई नहीं जानता है कि इस दिन रिप किया है 20%, तो अगले दिन फिर से करेगा। तो मोस्ट लाइकली जब 20% एक दिन में आपको एक स्टॉक में दिखता है, आपकी डिसेंट पोजीशन, तो आप वो बेच देते हो कई बार। आई एम नॉट सेइंग कि वो सही है या गलत है, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। सो दैट इज देयर, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन कई बार लोग बेच देते हैं, तो वो आपको देखना है कि उसकी वजह से वॉल्यूम बढ़ता है, और बढ़ना चाहिए। नहीं बढ़ रहा है और ऊपर जा रहा है स्टॉक तो गलत बात है। ऊपर जा रहा है तो वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, और कंसोलिडेट करे तो लो वॉल्यूम। मोस्ट लाइकली यहाँ पे कुछ टाइम पास करेगा, और आई कैन से कि दिस इज द फ्लोर। लाइकली 495 इज द फ्लोर ऑन क्लोजिंग बेसिस, आई सपोज। ये कुछ दिन यहाँ टाइम पास करेगा, देन अगेन इट विल रिप। So don't worry, you know, much more to come in Hava Sugar. If you see the monthly or weekly pattern, you know, it is great. So it has to go here, okay? It will do some 600 plus, and then we'll see कि उसके बाद actually story will become much better, क्योंकि उसके बाद ये all time high बन जाएगा। आवा शुगर एक्चुअली ये डिमर्ज्ड कंपनी है, इसीलिए आप देख रहे हैं ये यहाँ से इसका चार्ट है। मगर शुगर की, ये दोनों एक साथ है ना, डिमर्ज होके आई थी। अब ये ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे है, इनफैक्ट ऑल टाइम हाई से भी इसने ज़्यादा कर दिया। 200 था डिमर्ज होने के बाद प्राइस, और ये अभी जो है 370 पहुंच गया, ऑलराइट। तो मे बी वी कैन एक्सपेक्ट समथिंग सिमिलर फ्रॉम अवर, हु नोस। बट डोंट, यू नो, थिंक कि अब ऐसा ही होगा तो इसलिए घर बेच के लगा देते हैं।
ऐसा एकदम से भी नहीं करना है। ऑलराइट, नेक्स्ट स्टॉक इज ग्लोबस स्पिरिट्स। ओके, सो नॉट ओके, ग्लोबस स्पिरिट्स। अब ये दिखाना है, ये हमने स्पेस में भी बात की थी थोड़ी, सो आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई अगेन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, दैट इज व्हाई आई एम टेकिंग इट अप अगेन, व्हाट यू कैन लर्न फ्रॉम हियर। PC is running low. Anyway, I'll just finish it. So if you see this, ये यहाँ पे मैंने इसकी बात की थी कुछ 31 मई के राउंड में, ठीक है। उसके बाद 2-3 दिन उसने टाइम पास किया है और देन इट रिप्ड जस्ट, है ना। एंड यहाँ पे इसने ये वो कंसोलिडेशन किया, लो वॉल्यूम हो गए थे यहाँ पे, एंड अगेन रिप्ड। नाउ इट इज हिटिंग सर्किट, क्योंकि वो एएसएम लिस्ट में है। एएसएम में ज़्यादा बात नहीं करनी, वो सर्विलेंस मैकेनिज्म है, वो बेवकूफ़ी है, बट एनी वे यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, तो उससे ज़्यादा जानना नहीं है। बस ये होता है कि एएसएम में कई बार आप उसमें डेली इंट्राडे नहीं पॉसिबल है, तो उससे लिक्विडिटी ड्राई हो जाती है। ओके, तो ज़्यादातर सिर्फ डिलीवरी बेस्ड ट्रेड होता है, जैसे T2T सेगमेंट है। ओके, तो उसमें क्या होता है, सिर्फ डिलीवरी बेस्ड ट्रेड होते हैं, तो यू कैन नॉट टेक इंट्राडे, मतलब आप तो वैसे भी नहीं करते इंट्राडे, बाकी लोग नहीं कर पाएंगे, तो उसकी वजह से लिक्विडिटी खत्म हो जाती है। तो ये एक मिथ है कि लोगों को लगता है कि ट्रेडर को खत्म कर देंगे, खाली इन्वेस्टर बचेंगे तो मार्केट बड़ी अच्छी हो जाएगी। नॉनसेंस। उससे आपका जो बिड और आस्क का स्प्रेड है ना, मतलब जब आप खरीदते बेचते हो, वो बहुत बढ़ जाएगा, तो इम्पैक्ट कॉस्ट बड़ी हाई हो जाएगी। इट विल बी वर्स फॉर इन्वेस्टर, you won't be able to fill up your orders, you won't be able to sell your stocks at current market price। जब आप बेचने जाएंगे डिसेंट क्वांटिटी, तो बहुत नीचे चला जाएगा, क्योंकि आपने ट्रेडर्स को रिमूव कर दिया इस सेगमेंट से, और लिक्विडिटी बड़ी कम हो जाएगी। लेकिन वो अब क्या समझाओगे इनको, है ना, तो जाने दो। तो ग्लोबस स्पिरिट, इफ यू सी, इट हैज डन मतलब नथिंग सॉर्ट ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। सी जस्ट दिस 133% मूव इन फ्लैट 30 डेज, एक महीने हुआ 130% का मूव। इसमें ऐसा था कि ग्रोथ स्टॉक है ना, एथेनॉल की भी स्टोरी है इसमें, कैपेसिटी और ऑनलाइन आ रही है कैपेक्स के बाद, ठीक है, और चीपली ट्रेड करता है, और प्राइस एक्शन ग्रेट है। अगर ये सब कुछ एक साथ मिलता है आपको, तो यू हैव मल्टी बैगर एट योर हैंड, ठीक है। तो ऐसा ही हुआ यहाँ पे, ठीक है। एनीवे, लास्ट स्टॉक इज टिप्स इंडस्ट्रीज। So Tips is, by the way, one of the first stock that we discussed in Pro. In September I discussed this, possibly. Yeah, you see this, 215 पे बोला था, अभी 1400 क्रॉस कर गया है ना, 7x। Okay, so now we are talking about this. So if you see this, स्टॉक ने काफ़ी अच्छा किया, ये यहाँ पे सितंबर में इट डिड वेल, देन सम करेक्शन, वही सेम पैटर्न है, वॉल्यूम सूख गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, थोड़ा सा कंसोलिडेशन, एंड देन इट डिड ह्यूज, है ना, जनवरी में। अब जनवरी में जब उसने बड़ा अच्छा किया, उसके बाद क्या हुआ कि ये बहुत लंबा कंसोलिडेशन किया, ये देखिए एकदम क्लियरली पोलैरिटी का प्रिंसिपल काम कर रहा है। ये रेजिस्टेंस है, और ये वही बाद में जब इसके ऊपर चला गया प्राइस, तो सपोर्ट की तरीके काम किया, और फिर वंस इट ब्रोक आउट फ्रॉम हियर अप्रैल, बस सर्किट्स, देन अगेन कंसोलिडेशन, देन सर्किट्स, देन कंसोलिडेशन, देन सर्किट। यहाँ पे हमने एक नई पोजीशन बनाई है 1190 पे, ठीक है। द रीजन इज सिंपल, ऑडियो बिजनेस इज गोइंग टू चेंज बिग टाइम। आईपी होती है इनके पास, ठीक है, गानों की आईपी है। तो जब अगर आप विंक पे गाना सुनते हैं, फेसबुक में कोई स्टोरी बनाते हैं जिसमें आप गाना यूज करते हैं, है ना, तो वो एक्चुअली क्या होता है, वो कॉपीराइटेड मटेरियल है, वो पायरेटेड कॉपी नहीं यूज़ कर रहे हैं आप। तो इंस्टाग्राम में स्टोरी है, तो वो सब जगह आप जो गाने यूज़ कर रहे हैं, उसके लिए पे करना पड़ेगा आईपी ओनर को। तो इंडिया में कई आईपी ओनर हैं, टी सीरीज और ये सब, जी म्यूजिक और यशराज और है ना, ये अपने टिप्स और सारे गामा तो है ही हैं। तो लिस्टेड लेकिन सिर्फ दो हैं, टिप्स और सारे गामा, और टिप्स और सारे गामा लिस्टेड हैं, सिर्फ उन्हीं के द्वारा हम ये स्टोरी प्ले कर सकते हैं। अब इसमें स्टोरी बस इतनी सी है कि उनका बहुत सारा बड़ा एक म्यूजिक कलेक्शन था, म्यूजिक लेबल्स का, वो अब वो मोनेटाइज कर सकते हैं, जो वो पहले नहीं कर पा रहे थे। तो वो चीज है, अगर अब वो कर लेंगे इस चीज को, तो उनके पास सडनली काफी पैसे आ जाएंगे। ऑलराइट, तो जो बिजनेस था लो मार्जिन था, जिसमें कोई इंटरेस्टेड नहीं होता था, सडनली इट इज चेंजिंग बिग। तो काफी अच्छी चीजें यहाँ पे हो सकती है इस अगर आप एंगल से सोचे तो टिप्स इंडस्ट्रीज, इवन इफ यू थिंक कि ये बहुत ऊपर चला गया है, अब क्या होगा, है ना, 7 गुना हो गया है, डोंट वरी अबाउट इट। इसमें म्यूजिक का बिजनेस है प्लस मूवी बिजनेस है, ये डिमर्ज करेगी कंपनी 6 महीने में, म्यूजिक अलग कर देगी और मूवी अलग कर देगी। मूवीज नॉट अ ग्रेट बिजनेस, और म्यूजिक बड़ा अच्छा बिजनेस है, तो उसके बाद उसका मल्टीपल और हाई हो जाएगा जो वैल्यूएशन है।
जो क्योंकि परसेप्शन है वो और अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो अब अगर आप ये यहाँ खरीदते हैं तो नो बडी नोज, मे बी इट कैन गो बैक टू हियर 1300, आई डोंट नो, मे बी इट कैन गो बैक टू ऑल द वे 1190, 1210, आई डोंट नो। तो इट इज पॉसिबल कि इट कैन गो डाउन। ऑल आई एम सेइंग इज दिस इज अ ग्रेट स्टोरी। प्राइस एक्शन यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए आपको यूज करना था, जो वो मैं थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन कर रहा था ना, एक्स इंटू वाई वाला कंसेप्ट, वो अगर आप देखें ये दिस थिंग, ओके, प्राइस एक्शन एक्स है और स्टोरी वाई है। यहाँ प्राइस एक्शन में भी आपको लगे कि ये ऑल टाइम हाई पे है, बड़ा ऊपर चला गया, एक्सटेंडेड एंड व्हाट नॉट, तो एक्स की वैल्यू बहुत कम है, बट वाई की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो जो एक्स इंटू वाई है वो के से बहुत ऊपर है, राइट? तो यू शुड बेट ऑन दिस, तो वो चीज़ है। Anyway, so I'm done with this thing. Maybe if you liked it, please, share the video once it is uploaded on YouTube, and maybe you can share with your friends also that we have got a Bharti Nirshak Parivar where people discuss things and you can make good money and learn things. If you have any question, feel free before I close this. If you don't have, I'll close it anyway. So, Ian, I have one quick question. Yeah, You're saying the lower the float, it's good stock, right? Can yeah. you explain the logic behind it? Sure. So I'm just stopping my screen and then I'll explain. So basically, if you see the float is low, then what happens? ठीक है। अभी आप ये बात करते हैं कि प्याज है मार्केट में 2 किलो है, ठीक है। और एक दूसरी मार्केट है वहाँ पे 20 किलो प्याज है, ठीक है। डिमांड दोनों की दोनों जगह प्याज की है, ठीक है। एक मार्केट में 2 किलो प्याज है, दूसरे में 20 kg है। तो अब ये बताइए, जहाँ पे अगर ऑडियंस सेम है और सप्लाई कम है, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा? वहां पे जो, जहां पे कम क्वांटिटी है, जो सप्लाई कम है और डिमांड सेम है, सप्लाई कम है जहाँ पे, तो वहां पे प्राइसेस ज्यादा शूट करेंगे। तो सेम आइडिया स्टॉक मार्केट में होता है कि ऐसा स्टॉक जिसका फ्लोट लो है, उसका मतलब ये है कि उसमें जरा सी बाइंग आएगी तो वो ट्रेडेबल फ्लोट है ही नहीं, शेयर बेचने वाले लोग हैं ही नहीं, तो वो कम लोग हैं। ऑल राइट। यस, सो बेसिकली व्हेन फ्लोट इज लो, बेसिकली लेट्स से कि एक 100 करोड़ मार्केट कैप की कंपनी है, वहां पे 20% फ्लोट है, ओके, तो 20 करोड़ का फ्लोट है। एक दूसरी कंपनी, वो भी 100 करोड़ का मार्केट कैप है, उसमें 5 करोड़ का फ्लोट है, ओके, 5% फ्लोट है। अब डिमांड दोनों में सेम आती है बाइंग की, तो फिर क्या होगा? जिसमें 5 करोड़ ही ट्रेडेबल फ्लोट है वो ज्यादा रन करेगा, क्योंकि उसमें सप्लाई कम है। तो फॉर द सेम डिमांड, और अगर सप्लाई वहां पे कम है तो वो ज्यादा रन करेगा। दैट इज द रीजन व्हाई वी लाइक लो फ्लोट स्टॉक, low tradable float to be precise. I hope you got the answer. Yes, it's clear now. Okay, so anybody else has anything to say? Somebody said something in chat box. Can you please say again, because uh, I don't see anything now. I had to rejoin. If you have anything, otherwise I'll close it because already it is 1 hour. Anyway, so
let's close it. Thank you for joining. Next week also at 4 p.m. we'll have some, better setup. Today I didn't have my laptop in charge, so it, went to sleep in between. Sorry for that. I hope you enjoyed and you learned some stuff, something which will make you a better trader. Thank you for joining. Meet you next week. Bye.